Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have The Hindu analysis dated 18th October 2021. So, let's start today's discussion. The first article is a report given by the government or published by the organizations of government stating that only 3.9% children malnourished. Now, why was this article today? Because yesterday we saw that there was an report that showed that India's rank is 101 out of 116 country for global hunger index. So, related to the Global Hunger Index, India's government stated that it is a false, or we can say it is an exaggerated data, whereas India believes that India's position is well more better than the position showed in the index. So, through the article states, government slams the publishing agency of Global Hunger Index, says the data inflated. The data is falsified, or we can say the data is not showing the actual data or the actual new numbers of India. The value of a key indicator used in the Global Hunger Index is inflated. Why inflated? Because in yesterday's data, it showed that India's this intake of calorie, child wasting, and all these things are very much high. It showed almost the difference of 7 to 8%, but whereas Indian government says the malnourishment is only 3.9%, as only 3.9% of the Anganwadi children were found to be undernourished, the union government said on Sunday. The real time data of beneficiaries registered in Anganwadi platform includes 7.79 crores. 7.79 crore children based between the age of 6 to 6 years. ठीक है. सो क्योंकि आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी स्टूडेंट्स हैं या आंगनवाड़ी बच्चे हैं, उनको पोषण अभियान के अंदर प्रॉपर दे गिव फूड, जैसे मिड डे मील है, सेम ही में सेम तरीके में पोषण अभियान भी है, जिसमें दे प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द चिल्ड्रंस ऑफ आंगनवाड़ी. सो अकॉर्डिंग टू द track that is made by the number tracks that is made by the पोषण अभियान, इट स्टेट्स की 6 मंथ से लेके 6 years के चिल्ड्रंस तक जो आंगनवाड़ी में आते हैं, दैट इज 7.79 करोड़. Corresponding numbers unnourished children ported by the Poshan track is 30.27 lakh, which is 3.9% only. So out of the 7.79 crore, only 3.9% of the children were found undernourished. So Global Hunger Index, not based on the opinion poll published on October 17. Second thing, it said that these beneficiaries are representatives of the poorest strata of the society, and the lower levels of undernourishment is surely reflects the union India's data. नाउ अगर आज ये 2021 की बात करें तो इंडिया को 101 पोजीशन पे डाला है. उससे भी सबसे ख़राब चीज़ क्या है कि हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं वो हमसे बहुत आगे हैं इस चीज़ में. ठीक है. और सबसे पहले चीज़, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 इंडिकेटर्स पे वर्क करता है. दैट इज़ अंडर नरिशमेंट. ठीक है. 6 मंथ से 6 years के अंडर. सो अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग मतलब जो वेट है वो बढ़ना रुक जाता है एक पर्टिकुलर एज 5 years के अंदर. देन स्टंटिंग इज़ हाइट ग्रोथ रुक जाती है उनकी उसी पे. एंड दूसरा वो भी सारे जो हैं हमारे 5 years के अंडर. और दूसरी है मोरालिटी. तो ये 4 प्रिंसिपल पर हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट करता है डेटा को. ऑफ दिस इंडियाज परफॉर्मेंस इज शोड टू बी डिटोरेटेड ओनली फॉर अंडर नरिशमेंट. सिर्फ अंडर नरिशमेंट के केस में ही इंडिया का मतलब इंडिया ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया का डेटा जो है अंडर नरिशमेंट की वजह से ही इतना लो या इतना डिटोरेटिंग दिख रहा है. However, undernourishment and undernutrition, used as synonyms by the government, are treated on the indicators by FAO.
तो क्वेश्चन यही उठा है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या बोलना है, इंडियन गवर्नमेंट का, कि एफएओ ने जो डेटा दिया है अंडर नरिशमेंट को लेके वो फॉल्सिफाइड है, दैट इज़ नॉट द राइट डेटा। अगर आपको एक्चुअली डेटा चाहिए रहता तो आप हमसे हमारा जो रिसेंट ईयर्स का डेटा होता है, क्योंकि एवरी ईयर हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रॉपर डेटा निकालती है इंडिया के सिचुएशन को लेके, तो आपको वो कंसिडर करना चाहिए था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि जो हमारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे WHO हो गए, UN हो गए, FAO हो गए, उन लोग ने जब कंसिडर किया इंडिया की सिचुएशन तो उन्होंने एक्चुअल डेटास को कंसिडर नहीं कर पाए हैं, एंड देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट डजंट बिलीव इन दिस डेटा, स्टेटिंग दैट आप अपने हिसाब से कर रहे हो बट वी डोंट बिलीव इन दिस नंबर, एक्चुअल नंबर इज़ वे मोर डिफरेंट देन इट इज़ शोन बाय यू। सो ये आर्टिकल में ये देखना था कि ये साल का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो भी कि ग्लोबल लेवल पे है, और इंडिया का एक्चुअल माल नरिशमेंट रेट जो है दैट इज़ ओनली 3.9%। ठीक है, एक चीज़ हमने देखा पोषण अभियान। पोषण अभियान के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एक एक्रोनिम है। पोषण अभियान जैसे मिड डे मील स्कीम है, वैसे ही आंगनवाड़ी के स्टूडेंट्स, आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं 6 साल के अंदर तक, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना मिल सके, दैट इज़ पोषण अभियान। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। The next article states that China tested nuclear capable hypersonic missile, says report. Now, रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये चीज़ बोला जाता है कि चाइना ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग किया था कल। ठीक है, इट वाज, मतलब हम बोल सकते हैं इट वाज आल्सो सक्सेसफुल एंड नॉट सक्सेसफुल आल्सो, क्योंकि जितना टारगेट था इसका, जो टारगेट पे इसको आके शूट करना था वो टारगेट से थोड़ा दूर शूट किया इसने। और दूसरी चीज़ जो है कुछ लोग का ये बोल रहा है कि इट वाज वेरी प्रोग्रेसिव या बोल सकते हैं बहुत अपडेटेड था वो जो मिसाइल उन्होंने बनाया है। कुछ लोग का बोलना है कि क्रिटिसिज्म, ये थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है इसके बारे में। सो विल रीड द आर्टिकल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में क्या चीज़ बताया है। द एडवांस स्पेस कैपेबिलिटी कॉट US इंटेलिजेंस बाय सरप्राइज। क्योंकि क्या हुआ, ये लोग ने जब चाइना ने ये टेस्टिंग किया तो ये चीज़ उन्होंने रिपोर्ट में या रिलीज़ नहीं की थी कि टुडे विल डू द टेस्टिंग, एंड उन्होंने क्या किया, ये जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसको ऑल अराउंड द ग्लोब घुमाया। ठीक है, ये जो उन्होंने मूवमेंट लिया वो ग्लोब ने। सो US का जो सैटेलाइट है, US के जो डेटाबेस्ड हैं उनके नज़र में ये ग्लोब आया। सो दे वर वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर आप लोग ने पोखरन मूवी देखा होगा, पोखरन मूवी का मेन बेस यही था कि वो लोग ऐसे टाइम पर उसका मिसाइल का टेस्टिंग करें जिस टाइम पर US की जो सैटेलाइट है वो इंडिया के ऊपर ना हो। अगर इंडिया के ऊपर रहती तो उनको पता चल जाता कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउड एज पर दी UN रूल्स। ठीक है, सेम चीज़ क्या हुआ था, ये जो मिसाइल उन्होंने टेस्टिंग की थी उन्होंने किसी को बताया नहीं था, बट व्हेन इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द ग्लोब, ठीक है, उस टाइम पर UN की सैटेलाइट के नज़र में वो चीज़ आ गई, एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड अबाउट दिस न्यूक्लियर मिसाइल, बिकॉज सम ऑफ द साइंटिस्ट सेड दैट इट वाज वेरी अपडेटेड वन, एंड some of them said कि it needs more improvement. China's military has carried out the first ever test of nuclear capable hypersonic missile, according to the report on 17th October 2021. The missile in August circled a globe before speeding at its target, demonstrating an advanced space capability that caught the US intelligence by surprise. That is what it says. The newspaper quoted 5 people familiar with tests as saying Chinese military launched a rocket that carried out a hypersonic glide vehicle that flew through the low orbit space before cruising down to its target. So इसका जब मिसाइल का लॉन्च किया गया था, सो मिसाइल के लॉन्च के टाइम पे इट वाज स्लो प्रोसेस पे था, एंड सडनली इट इंक्रीज स्पीड। तो इसका जो लॉन्च था वो कब किया गया था, अगस्त में किया था। क्यों अगस्त में, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये पूरा ग्लोब का एक राउंड लेकर देन इट वाज मेड अ कि इस जगह पे उसको टारगेट करना है। सो उसका जो सरप्राइज व्यू है वो US को तभी मिला था। सो द मिसाइल मिस्ड इट्स टारगेट बाय अबाउट 2 dozen miles.
2 डजन माइल्स, लाइक 12 माइल्स के डिफरेंस पे वो टारगेट मिस हो गया। मतलब उनको जो एक्चुअल जहाँ पे मिसाइल को शूट आउट करना था उधर से 12 माइल्स दूर पर उसने शूट आउट किया, जिसकी वजह से ये भी बोला जाता है कि इट नीड्स मोर अपडेटमेंट। 12 माइल्स इज़ अ वेरी बिग difference. The Financial Times noted that only US, Russia, China were developing the hypersonic glide vehicles that launched on rocket and then orbit the Earth on its own speed. They are difficult to track because, unlike the ballistic missiles, they do not follow a fixed parabolic trajectory. जैसे कि हमारे जो भी मिसाइल्स होते हैं जिसको हम लॉन्च करते हैं उसका ट्रैक करना इज मच ईजी, बिकॉज उसको हम डिसाइड करते हैं कि वो किस स्पीड से घूमेगा और किस ऑर्बिट में घूमेगा। बट वेर एज व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका ट्रैकिंग इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज इसका हम ये स्पीड या फिर इसका हम ऑर्बिट डिसाइड नहीं कर सकते। The newspaper said the test would be pose a big challenge to US missile defense because the weapons could, in theory, fly over the South Pole, and that would pose a big challenge for US military. Therefore, now it has become a challenge for US, because पहले तक ऐसा था कि सिर्फ Russia and US has had such missiles or such technology, but now China is also rising up with this technology. सो हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब तक किन किन कंट्रीज़ के पास बन चुके हैं? तो चाइना इन वर्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, रशिया एंड यूएस के पास ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ईरान टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स सेज एमपी। अब इसकी बात करें तो न्यूक्लियर टॉक के रिलेटेड ये आर्टिकल जो है ऑलमोस्ट जून से आ रहा है। क्यों जून से आ रहा है? तो ये आर्टिकल बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देती हूँ, दैट इज JCPOA। ठीक है, JCPOA के बारे में आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा कि नहीं। सो ईरान जो है, ईरान की अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ या ईरान कंट्री की बात करूँ, ईरान एक ऐसी कंट्री है विच हैज़ अ मोर डिपोजिशन ऑफ यूरेनियम। ठीक है, थियरियम, आज जो न्यूक्लियर वेपन्स में जो ज़रूरत होते हैं मेन एलिमेंट्स के, उसके डिपोजिशन, उसका स्टोरेशन जो है ईरान के पास इज़ एट वेरी गुड लेवल, जिसके वजह से ये भी एक थ्रेट हो सकता है कि ईरान क्या करेगा, ईरान वो सारे ही एलिमेंट्स को यूज़ करके खुद के मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। सो इट कैन बी थ्रेट फॉर नॉट ओनली द डेवलप्ड कंट्री बट ऑल ओवर दी ग्लोब, जिसके वजह से ईरान के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जिसको हम JCPOA बोलते हैं। JCPOA क्या है? तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में क्या होता है कि अब इस ट्रीटी के, अगर ईरान ने ये ट्रीटी साइन कर दी, इस ट्रीटी के बाद ईरान एक लिमिटेड नंबर्स तक ही, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1500 किलोज तक का ही यूरानियम यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। सो ये जो JCPOA है, इट इज़ बेसिकली 5 कंट्रीज़ विद ईरान। ठीक है, तो ये जो 5 कंट्रीज़ है वो नज़र रखते हैं ईरान पर कि वो ईरान जो है इस नंबर से ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। अब हुआ क्या था, बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ, 2018 में हमारे जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे USA के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया था, ही विड्रूड फ्रॉम दिस ट्रीटी, ही विड्रूड फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, कि हम इस एग्रीमेंट से बाहर हो रहे हैं। एक ब्रेकडाउन हो चुका था JCPOA में। अब ईरान भी फिर बात नहीं मान रहा था, ईरान ने भी बोला कि ठीक है, क्योंकि ईरान के डेटास के हिसाब से ये निकल रहा था कि ईरान ज़्यादा यूरानियम यूज़ कर रहा है। अगेन अब ये आर्टिकल इसके लिए न्यूज़ में आया है कि क्यों ईरान ने डिसाइड किया है दे विल रिज्यूम द ट्रीटी बैक, ये जो ट्रीटी है उस पर वापस आएंगे एंड ट्रीटीज़ के हिसाब से अब कंट्री फंक्शन करेगा। सो द 17th एडिशन ऑफ Iran is to resume the nuclear negotiations with the world powers on 21st October। 21st अक्टूबर को इनका फर्स्ट नेगोशिएशन होने वाला है। ठीक है, और ये ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, उन्होंने बताया है, Abdulin, sorry. The minister said that talks between 4+1 group, अब 4+1 ग्रुप क्या है ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो इसमें 4 कंट्रीज़ कौन कौन है? ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, अब इसके साथ एक आ गए हैं लेटेस्ट जो थे, लास्ट जो ज्वाइन हुए थे वो थे जर्मनी। ठीक है,
तो ये यूएन के 4 सिक्योरिटी मेंबर्स अलॉन्ग विद जर्मनी, जिसको हम 4+1 बोलते हैं। तो ये 4+1 का ईरान के साथ जो ट्रीटी है उसको हम JCPO बोलते हैं, ठीक है। नाउ ईरान एंड दिस 5 नेशंस ओपन द टॉक इन वेनिया इन अप्रैल, also attending the US taken part in the indirect negotiation. That was the last time जब US ने उसमें पार्ट लिया था। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर बात कर रहे हैं। सो US, China and Russia, Germany, France, Britain struck an accord in Vienna with Iran to its nuclear programs in 2015. But US Donald Trump pulled out from the deal and reimposed the sanctions, ठीक है, वो उस ट्रीटी से बाहर आ गए। नाउ मिस्टर ट्रम्प सक्सेसर जॉय बिडेन जब वो आए पावर में, तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे मेरी कंट्री की रिलेशन दूसरों कंट्री के साथ बहुत अच्छी रखनी है, एंड देयरफॉर उन्होंने रिज्यूम किया। उन्होंने बोला कि हम वापस से JCPO के मेंबर बनेंगे एंड वापस से विल वर्क टुगेदर, ठीक है। सो दे ही टॉक्ड ऑन द रिवाइविंग ऑफ द वेनियाज टॉक। सो ये रिवाइविंग की बात जो है वो जून में आई थी, तो कि जून में हमारे सर जॉय बिडेन ने बोला था कि हम वापस से ये ट्रीटी में आएंगे, एंड एट लास्ट ईरान ने बोला कि ठीक है, विल वर्क टुगेदर अकॉर्डिंग टू JCPOA। तो JCPOA के बारे में आपको पता चल गया। अब आपका आज का एक होगा का JCPO जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था या फॉर्म कब हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको बताया 2018 में US के प्रेसिडेंट ने बैकआउट कर दिया, तब से इसकी फंक्शनिंग थोड़ी ख़राब हो गई। अगेन जून में जॉय बिडेन सर आए, उन्होंने बोला कि हम इस पर काम करेंगे एंड नाउ दे विल स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग अगेन। तो आप मुझे इसका फॉर्मेशन बताएंगे कि JCPO कब साइन हुआ था, ठीक है। दैट इज़ फॉर योर होमवर्क दिस टाइम। सो बेसिकली अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो P5+1, P5 में UN के 4 अलॉन्ग विद जर्मनी, और 1 इज़ योर यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर बनता है। सो दैट वाज अबाउट दिस ईरान स्टॉक। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे जाएं तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है, दिस आर्टिकल विल बी अ रिवीजन फॉर यू, क्योंकि हमारे US इंडिया के मिलिट्री के जो एक्सरसाइज है वो हमने देखे हैं, ठीक है। मैंने आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था। सो इंडिया US मिलिट्री मैचेस द स्किल्स इन अलास्का, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इंडिया एंड US के जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसमें ये चीज़ बोला जाता है कि एकलौता एक्सरसाइज जो सिर्फ US और इंडिया का बायलैटरल होता है, दैट इज़ युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि युद्ध अभ्यास क्या है। अगेन आई लेट यू नो, इस आर्टिकल के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि युद्ध अभ्यास का मतलब क्या है। So the 17th edition of India's US bilateral exercise Yuddha Abhyas 2021 got under the joint base, जो इस बार का होने वाला है मिलिट्री एक्सरसाइज वो अलास्का में दोनों तरफ से होने वाला है साथ में। इंटरेस्टिंगली दिस इज़ द ओनली US इंडिया एक्सरसाइज कंटिन्यूइंग एज बायलैटरल। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो विच इज़ द ओनली US इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज दैट इज़ हैपनिंग करेंटली, दैट इज़ युद्ध अभ्यास। क्योंकि बाकी जो होता था मलाबार जो होता था पहले वो US और इंडिया में होता था, फिर जापान आ गया, फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया भी आके वो क्वाड मलाबार ट्रीटी हो गई है, क्वाड मलाबार एक्सरसाइज हो चुका है। द US मलाबार नेवल एक्सरसाइज बिकेम अ ट्राइलैटरल विद द एडिशन ऑफ जापान 2015 में आया, और फिर एट लास्ट 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, जिसकी वजह से इसको अभी हम क्वाड मलाबार एक्सरसाइज बोलते हैं। सिमिलरली जापान जॉइंड द बायलैटरल एक्सरसाइज कोप इंडिया एज एन ऑब्जर्वर इन 2018। 2015 में वो एज अ फाइनल मेंबर ज्वाइन हुआ मालाबार ट्रीटी में। उससे पहले का जो 3 साल था दैट इज़ 2015 से लेके 2018 तक जो है वो एज अ ऑब्जर्वर कंट्री एक्सरसाइज में पार्ट ले रहा था। सिमिलर विथ ऑस्ट्रेलिया भी इससे पहले तक सिर्फ ऑब्जर्वर कंट्री जैसा पार्ट ले रहा था, बट बाद में 2020 में डिसाइडेड कि वो एक परमानेंट मेंबर बनकर मलाबार ट्रीटी का पार्ट बनेगा या मलाबार एक्सरसाइज का पार्ट बनेगा।
The exercise aims at enhancing the understanding, cooperation, and interoperation ability. It will focuses on the combined arm maneuver in the cold climatic condition. जैसे मैंने आपको बताया, इससे जो अभी हुआ है, इससे पहले का जो मलाबार था वो हुआ था राजस्थान में, इस बार का जो वो अलास्का में हो रहा है. सो इट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 15th October to 29th October. ठीक है. और एक्सरसाइज यूथ अभियास इज द लार्जेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिफेंस इंडिया वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज. जैसे मैंने बोला, इट इज़ द ओनली वन एंड द लार्जेस्ट एक्सरसाइज जो कि अभी प्रैक्टिस हो रहा है. फ्रॉम यूएस साइड 300 ट्रूप्स आने वाले हैं. 40th कैलेवरी रेजिमेंट लेके 350 सोल्जर्स होंगे 7 मद्रास इन्फेंट्री बटालियन से इंडिया के तरफ से. द 14-day ट्रेनिंग शेड्यूल इज़ फ्रॉम द जॉइंट ट्रेनिंग जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगा. दिस विल हेल्प देम टू अंडरटेक द जॉइंट ऑपरेशन ऑफ द बटालियन लेवल. तो सेम अगर यूएस से 400 आने वाले हैं, इंडिया से 350 आने वाला, आई थिंक सो. Yeah, 350 soldiers from the 7 different battalions of India. All the opening ceremony happens in Alaska. Stress the importance of free exchange of idea between both the countries. Now, COP India, other than the Malabar exercise, Japan has sent observers for the first time during the COP India 2021. Now, दूसरा चीज़ COP India 2021 क्या है वो आप मुझे बताएंगे. What is COP India 2018? सो कोप इंडिया 2018 जो हुआ था उसमें जापान फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वर कंट्री बनकर आया था. एज फॉर द रिपोर्ट ऑफ द हिंदू, यूएस हैज़ प्रपोज अ ट्राइलैटरल एयर एक्सरसाइज विद जापान एज एन ऑब्जर्वर कंट्री और इंडिया उसका परमानेंट कंट्री है बायलैटरल इंडिया यूएस के साथ. सो दैट इज़ वाई इट स्टेट्स दैट इंडिया यूएस मिलिट्री मैचेस द स्किल्स इन अलास्का. उस लेवल की उनकी ट्रीटी होने वाली है. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा एंड आपका होमवर्क आप लोग को मुझे चैट बॉक्स में बताना है. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.